Hello, everyone. Hope you all are fine. Please take care of yourself and your family in this situation. Let's make learning fruitful in this online mode. Today, we are starting our second chapter in political science, class 10th, that is federalism. As in first chapter, we have studied about the power sharing arrangement, different power sharing arrangement, and if you remember, the main two types of power sharing arrangement, that is the horizontal division of the power and the vertical division of the power. In this chapter, we will study about more broadly about the vertical division of the power. Okay, and we will study what is federalism and how the Indian constitution is federal in character and where the power are vested with the different tiers of the government, and a federation, its quality, its characteristics, most prospectively in regards to Indian. And best thing, always remember, the NCERT textbook is the best companion to understand the concept and the terms in this chapter. Okay, let's we start with the definition of the federalism. So, the federalism. What is federalism? The federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constitutional units of the country. And these constitutional units may be states or a third tier also, center government, state government, and in third tier in our country's example, like the local bodies. Okay, so federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. And in India's perspective, these constituent units are states. Okay, now this is how the power is shared or the federalism is practiced in our country. We are having the different levels or tiers of the government. Level of government in federation, like usually, generally, in if a broad perspective, we will see the usually a federation has two levels of government. The first one, the government for the entire country. पूरी कंट्री के लिए देर इज वन सिंगल गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई. ओके, द गवर्नमेंट फर्स्ट लेवल अगर हम देखें, द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. एंड सेकेंड वन, government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administrating of their state. तो दो टीयर अगर हम देखें अपनी कंट्री पे, तो फर्स्ट वन सेंट्रल गवर्नमेंट टीयर वन, सेकेंड वन स्टेट गवर्नमेंट टीयर टू, लेवल वन या लेवल टू. अब देखिए, the thing is there, each tier of the government has its own jurisdiction. jurisdiction का मतलब कि किस मामलों में उसकी अथॉरिटी है, किस मामले में वो फैसला ले सकती है. जैसे वी विल जस्ट स्टडी इन दिस कि अब की फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म में. वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, देयर आर टू और मोर लेवल और टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. एज आई सेड, सेंट्रल गवर्नमेंट वन टीयर वन लेवल, स्टेट गवर्नमेंट सेकेंड लेवल सेकेंड टीयर, एंड in country of like India, our country, we have the third tier also, that is the local government. local government में क्या आ जाता है, पंचायती राज, पंचायत जो हमारे होते हैं, and municipalities, local bodies. Okay, then this key feature of federalism is always a hot question for CBSE board examination. If you look for the last 5 years, you will find out this question in a 5 marks question. Okay, so we are taking it one by one. टू और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टीयर हैज इट्स ऑन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गवर्न करते हैं सेम सिटीजन को. देखिए, अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाएगी तो हम उत्तराखंड में रहने वालों के लिए भी होगी. सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी तो ऑल ओवर इंडिया और डिफरेंट स्टेट वालों के लिए होगी. मतलब सिटीजन एक है, लेकिन उस पर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की पॉलिसीज क्या होंगी, इम्प्लाइज होंगी. ओके, बट ये जो डिफरेंट टीयर्स हैं, उनका जुरिडिक्शन, जो उनका अधिकार क्षेत्र होगा, वो अलग अलग होगा. जैसे आप देखेंगे, डिफेंस किसके जुरिडिक्शन में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, कुछ होते हैं लाइक द स्कूल एजुकेशन, वो
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जुरिडिक्शन में आते हैं। तो जो उनका जुरिडिक्शन होगा वो दूसरे पे क्या है, आप ओवरपार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल दोज हैव द पावर टू गिव द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ओके। तो हर जो गवर्नमेंट है, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, उसका अपना अपना जुरिडिक्शन है, एरिया ऑफ वेयर समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। हम जुरिडिक्शन मीन्स वेयर द एरिया वेयर समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। सपोज आपकी क्लास का कोई मॉनिटर है, उसका जुरिडिक्शन आपकी पर्टिकुलर क्लास है, वो दूसरे सेक्शन या दूसरे क्लास में माइंड नहीं कर सकता। हमारे स्कूल के कोई जो प्रिंसिपल हैं, उनका जुरिडिक्शन हमारा स्कूल है। पिथौरागढ़ के जो डीएम होंगे या पर्टिकुलर जिले के जो डीएम होंगे, उनका जुरिडिक्शन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होगा, ओके। तो उनका जुरिडिक्शन डिफाइन होता है और वो डिफाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दैट वाज डन, okay. Third key features is the jurisdiction of the respective level of the government are specified in the constitution, what we have studied, okay. So the existence and the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed, so you cannot overpower or influence too much in others jurisdiction. Then the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. Fundamental जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के, वो एक लेयर या टीयर ऑफ द गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को उसको पूरी मेजॉरिटी के साथ स्टेट्स की गवर्नमेंट को भी पास करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पास होगा, तब फंडामेंटल प्रिंसिपल चेंज हो सकते हैं, ओके। दिस इज द मेजर फीचर, ओके। देन सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और बोथ अभी हम ब्रॉडली पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओके। देन courts have the power to interpret the constitution and the power of different level of the government, क्योंकि कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं कि स्टेट कहता है कि सेंटर हमें ओवर पावर कर रहा है या हमारे जो जुडिक्शन है उस पर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनके पास लीगल अथॉरिटी है कि वो इंटरप्रेट करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पर्टिकुलर एरिया किस गवर्नमेंट के जुडिक्शन में आता है। इफ़ dispute arise between different level of the government in the exercise of their respective power, the court, the highest court यानी कि सुप्रीम कोर्ट will be interpret कि whose पर्टिकुलर जुडिक्शन और एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी किसका है, वो कौन डिसाइड करेगा, द कोर्ट। नेक्स्ट वन, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब क्योंकि गवर्नमेंट को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनी ऑफ द एक्सपेंसेस के लिए रेवेन्यू चाहिए होता है, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ईच लेवल के लिए आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो कहाँ से कौन सा टैक्स, कौन सा गवर्नमेंट, जैसे आप डिफरेंट टैक्स आपने सुने होंगे, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, आजकल एक और आ गया पूरा, इन सबको बहुत सारे टैक्सेस को हटा के जीएसटी, ठीक है ना। तो जीएसटी कलेक्शन में अब उन्होंने क्या कर दिया कि सेंटर का इतना परसेंट शेयर रहेगा और स्टेट का इतना परसेंट शेयर रहेगा। तो वो क्लियरली लिखा है कि कैसे आप जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और ऑटोनॉमी को जो है फुलफिल करेंगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज विदाउट इकोनॉमिक पावर्स नथिंग इज रन स्मूथली इन कंट्री और इन स्टेट। अब आते हैं द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव। अब जो भी ये फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ, उसके दो डबल ड्यूल ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट वन इज टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब हमारे यहाँ देखो, इंडिया पे जितनी डाइवर्सिटी है, यू कैन नॉट फाइंड आउट द सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन एनी अदर प्लेसेस, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, इथेनिसिटी, मैनी ऑफ द थिंग्स। तो ये हमारा जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हमारी डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, एकोमोडेट हो जाती है। देन देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू some rules of power sharing. And then they should also trust that each would abide by its part of the agreement. तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रोल है, ऑल्दो जनरली जो सिटीजन को वो गवर्न करते हैं वो एक ही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का सिटीजन भी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी के लिए रूल्स बनाता है। तो दिस हैव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव कि आपकी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री सेम रहे, सारे जो रीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, क्लैशेज ना हो। अगर आप रिमेंबर करेंगे चैप्टर 1 बेल्जियम और श्रीलंका का केस, ठीक है। तो ऐसे ही कैसे हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। और ये फेडरलिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम बताएंगे अब। 2 टाइप्स जनरली, तो कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर।
coming together. As its name suggests, it involves independent states coming together on their own to form a bigger unit. छोटे छोटे स्टेट साथ आते हैं, बड़ी यूनिट बनाते हैं, जिससे कि पावरफुल स्टेट बनेगा, पावरफुल कंट्री बनेगी. एंड so that by pulling sovereignty and retaining identity they can increase their security. तो छोटे स्टेट साथ आए हैं, coming together. इसका एग्जाम्पल है USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, छोटे स्टेट साथ आए हैं टू मेड अ लार्जर सब कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स. ओके, सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब नाम है जैसा इंडिया, इसका एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर. इट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट. जहाँ पे एक बड़ी कंट्री जो है अपनी पावर्स को डिवाइड करती है, छोटे छोटे स्टेट्स को या जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है उनको देती है कि उनको भी एलाइनिटी फील न हो, वो भी सोचे कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग. So that's why they have decided to divide its power between the constituent state and the national government. तो नेशनल गवर्नमेंट के अपने पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के अपने पावर, और उसके एग्जाम्पल हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. सो टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, coming together federation and holding together federation. Next topic we are going to see is the थ्री लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने कहा ना, तो डिफरेंट जुरिडिक्शन होता है डिफरेंट टीयर ऑफ द गवर्नमेंट का. तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट क्लियरली जो है प्रोवाइडेड हैं और थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है. तो वो थ्री लिस्ट क्या हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट एज नेम सजेस्ट, इसमें ऐसे सब्जेक्ट आते हैं सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस. इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर एक होगा, डिफेंस मिनिस्टर एक होगा, मिनिस्ट्री एक होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी. ओके, लाइक फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. ठीक है, तो इट इंक्लूड थ्री लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हैं जो जुरिडिक्शन दिया जाता है कि कहाँ पे किसका राइट है. तो स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ पे राइट है, उनका क्या जुरिडिक्शन है, एरिया ऑफ अथॉरिटी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, ये हमारी थ्री फोल्ड